Today's topic we will discuss the judiciary. Understand? And in this chapter you have got so many concepts that can be solved in judiciary. ठीक है, हमारे जो भी एग्जीक्यूटिव एंड लेजिस्लेटिव्स, ठीक है, अभी तक आपने लेजिस्लेचर एंड एग्जीक्यूटिव्स को डिस्कस कर लिया. ठीक है, एंड यू हैड स्टडीड दीज पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस. क्लियर? बट व्हेन डिस्प्यूट अराइजेज, ठीक है, इन केस ऑफ एनी डिस्प्यूट इन जुडिशरी एंड लेजिस्लेचर और इन एनी सेगमेंट ऑफ government structure, then who will help you? Judiciary will help you. Okay, so judiciary, it will become one of the major cause, ठीक है, of you can say discussion. Clear? तो हमारी जो जुडिशरी है, it will make decisions, है कि नहीं? जुडिशरी क्या करेगी? It will take decision, ठीक है, and try to maintain balance in administrative system. ठीक है, जुडिशरी क्या करेगी? It will try to make balance in various systems. ठीक है, तो अभी हम लोग थोड़ा सा देखते हैं ऑफिस मेमोरेंडम के बारे में. फाइनल टाइम, ठीक है, that we started it, and this time let us not recall the story, but imagine how different the story could have been. ठीक है, remember the story came to a satisfactory end because the Supreme Court gave verdict that was accepted by everyone. ठीक है, in the case of office memorandum that was issued on the base of BP Mandal report. ठीक है, recommendations, original recommendation. ठीक है, it has brought lot of dispute in the public. है कि नहीं? बहुत सारा विवाद खड़ा हो गया था. People had started hot debates. ठीक है, finally what happened? The matter went in Supreme Court. ठीक है, and Supreme Court gave its verdict. ठीक है, it gave its decision. ठीक है, that the recommendation of BP Mandal as a whole, ठीक है, they could not be implemented. There should be some change in that report, in that recommendation. ठीक है, और क्या चेंज होना चाहिए था? That there should be means the reservation should be given on the basis of their income. तब ये dispute खत्म हो गया, है कि नहीं? This dispute was over, and finally what happened? Who played this important role? That important role is played by judiciary. ठीक है, so judiciary solve disputes. ठीक है, अंडरस्टैंड? सबसे मेन वर्क क्या है जुडिशरी का? इट सॉल्व्स डिस्प्यूट्स. ठीक है, जितने भी झगड़े होते हैं, विवाद होते हैं, अंडरस्टैंड? अगर कुछ ऐसा सिचुएशन होता, इफ देयर वाज नथिंग लाइक अ सुप्रीम कोर्ट इन द कंट्री, अगर उस समय हमारी कंट्री में सुप्रीम कोर्ट नाम की चीज ही नहीं होती, देयर वाज नो सुप्रीम कोर्ट एट ऑल. ठीक है, तब क्या होता? इवन इफ देयर वाज अ सुप्रीम कोर्ट, इफ इट हैड नो पावर टू जज एक्शंस ऑफ द गवर्नमेंट. ठीक है, अगर सुप्रीम कोर्ट होती लेकिन उसको ये पावर नहीं दिया गया होता कि वो गवर्नमेंट के एक्शंस को जज करे. ठीक है, अगर मतलब जब उसको ये पावर नहीं मिला होता, हाँ वो सारे डिस्प्यूट मतलब सॉल्व कर सकता, बट गवर्नमेंट के एक्शंस को उस पर एक्शन नहीं ले सकता, अगर ऐसा कुछ दे दिया गया होता. अंडरस्टैंड? Then what had happened? Even if there was a and even if it had the power, if no one trusted the Supreme Court to give a fair verdict, भले ही सुप्रीम कोर्ट को पावर मिलती लेकिन उस पर कोई ट्रस्ट नहीं करता सुप्रीम कोर्ट पे, है कि नहीं? ट्रस्ट मीन्स भरोसा. ठीक है, अगर उसके डिसीजन पर लोग ट्रस्ट ना करें, राइट, तब क्या होगा? Even if it gave a fair judgment, if those who appealed against the government order did not accept the judgment, जिन्होंने अपील किया अगर उन्होंने इस जजमेंट को नहीं एक्सेप्ट किया होता, ठीक है, then what it had happened means there had been a problem. ठीक है, and the dispute it had arisen up to large extent.
large number of people, they had, you know, various types of opinions, and they had to fight with each other, isn't it? They had to create violence. Violence might have created, and you know, there had been riots, communal riots, ठीक है, riots between higher classes and poorer classes, ठीक है, riots between general categories and scheduled caste and scheduled tribe categories, isn't it? It might have created many types of problem in that sense, ठीक है। तो और इसके साथ साथ जो है, हाँ, इसीलिए क्या है, दिस इज वाई एन इंडिपेंडेंट एंड पावरफुल जुडिशरी इज कंसिडर्ड इसेंशियल फॉर डेमोक्रेसी, ठीक है। एंड इंडिपेंडेंट and powerful judiciary, ठीक है, is essential for democracy, ठीक है। Understand? If this question had came that an independent and powerful judiciary is essential for democracy, justify the statement. Justify the statement. This is your homework, today's homework. Note down. ठीक है? You have to justify this statement. है कि नहीं? तो कैसे हम इस स्टेटमेंट को जस्टिफाई करेंगे कि भाई किसी भी एक, क्या कहते हैं, कंट्री में अगर डेमोक्रेसी है तो देयर शुड बी एन इंडिपेंडेंट जुडिशरी एंड जुडिशरी शुड बी पावरफुल आल्सो, है कि नहीं? अंडरस्टूड? तो व्हाई इट विल हैपन, व्हाई डू वी नीड सच टाइप ऑफ जुडिशरी, दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस, ओके। तो क्या होगा, ऑल द कोर्ट्स, ठीक है, एट डिफरेंट लेवल्स इन अ कंट्री पुट टुगेदर आर कॉल्ड जुडिशरी, ठीक है। व्हाट इज जुडिशरी? ऑल द कोर्ट्स पुट टुगेदर आर नोन एज जुडिशरी, ठीक है। ऑल द कोर्ट्स, whatever courts are there in our country, when they will include everything, ठीक है, then it will make a judiciary. It means district court, high court and supreme court, ठीक है, together makes judiciary. Clear? Our district court, high court and supreme court, ये सारे मिलकर के क्या बनाते हैं, जुडिशरी बनाते हैं। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स मीन्स सेशन कोर्ट्स एट डिस्ट्रिक्ट लेवल, ओके। हाई कोर्ट यू नो वेरी वेल, क्या होता है हाई कोर्ट? देयर आर सेवरल हाई कोर्ट्स, ठीक है, जैसे हाई कोर्ट इन इलाहाबाद, ठीक है। ऐसे ही अप्रॉक्स जितने भी, क्या कहते हैं, हर रीजन में, एक मंडल में देयर इज अ हाई कोर्ट, ठीक है। एंड दिस हाई कोर्ट्स, जब क्या कहते हैं, आपके जितने भी लोग होते हैं अगर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में सेटिस्फाइड नहीं है तब कहाँ जाएंगे, हाई कोर्ट में जाते हैं, वहाँ अपील करते हैं अगर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के डिसीजन से सेटिस्फाइड नहीं है, ठीक है। एंड फाइनली दे गोज टू सुप्रीम कोर्ट, है कि नहीं? तो ये सुप्रीम कोर्ट हमारा क्या होता है, इट इज़ द फाइनल डिसीजन मेकिंग कोर्ट, ठीक है। तो ये सारे मिलकर के क्या बनाए, दे बिकेम्स जुडिशरी फॉर द इंटायर नेशन, ठीक है। दे मेक्स जुडिशरी फॉर द इंटायर नेशन, ठीक है, पूरे नेशन के लिए जुडिशरी है, अंडरस्टैंड।
एनी डाउट? नाउ वी विल डिस्कस। तो आपने क्या देखा कि जो हमारे ये होते हैं सुप्रीम कोर्ट्स हमारे क्या होते हैं, मतलब जैसे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स कहाँ पे होंगे, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, देयर jurisdiction इज अप टू डिस्ट्रिक्ट लेवल, ठीक है, डिस्ट्रिक्ट लेवल, अंडरस्टैंड। हाई कोर्ट स्टेट लेवल, ठीक है, और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट नेशनल लेवल, राइट। ये हमारे नेशनल लेवल के कोर्ट हैं, एक ही सुप्रीम कोर्ट होता है, ठीक है, एंड इट इज लोकेटेड इन न्यू दिल्ली, है कि नहीं। और जितने भी हमारे स्टेट्स हैं, हर स्टेट का एक हाई कोर्ट होता है, अंडरस्टूड। तो इस तरीके से जुडिशरी हमारी बनी हुई है, राइट। तो हमारे जो भी डिस्ट्रिक्ट लेवल के डिस्प्यूट हैं, दे विल बी सॉल्व इन डिस्ट्रिक्ट लेवल कोर्ट, ठीक है, एंड स्टेट लेवल के डिस्प्यूट्स दे वुड बी सॉल्व इन स्टेट लेवल, दैट इज हाई कोर्ट। और नेशनल लेवल का जो डिस्प्यूट होगा वो सुप्रीम कोर्ट में जाएगा, ठीक है। जब हर जगह से हार जाएंगे, यहाँ से भी यहाँ से भी, तब यहाँ पहुँचेंगे, ठीक। और सुप्रीम कोर्ट में अगर उनके फेवर में डिसीजन हो गया तो ठीक है, नहीं तो फिर जहाँ से डिसीजन शुरू हुआ था वही सही माना जाएगा, अगर सुप्रीम कोर्ट ने भी उसको कहा कि वही सही था, है कि नहीं, अंडरस्टूड। तो इन दिस मैनर इट मीन्स द सुप्रीम कोर्ट कंट्रोल्स द जुडिशियल एडमिनिस्ट्रेशन, है कि नहीं। तो सुप्रीम कोर्ट कंट्रोल्स, सुप्रीम कोर्ट कंट्रोल्स जुडिशियल एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है। यही हमारा जितना भी जुडिशियल एडमिनिस्ट्रेशन है दैट इज कंट्रोल्ड बाय योर सुप्रीम कोर्ट, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट से ही जो है क्या कहते हैं, इसके जो भी क्या कहते हैं जजेस वगैरह का ट्रांसफर, ठीक है, वो सुप्रीम कोर्ट के ही जजेस के एडवाइस पर होता है, ठीक है। प्रेसिडेंट जो होता है, जो हमारा सुप्रीम कोर्ट का जज होता है, उसके एडवाइस पर जो है उसके ट्रांसफर्स होते हैं, ठीक है, उनकी सैलरी वगैरह, सीनियरिटी, बहुत सारी चीज़ें, ठीक है। सो हाँ, इट मीन्स सुप्रीम कोर्ट ने पूरा जुडिशियल सिस्टम को कंट्रोल किया है, इट्स डिसीजंस आर बाइंडिंग ऑन ऑल अदर कोर्ट्स ऑफ द कंट्री, ठीक है। इसका टोटल डिसीजन सबके लिए बाइंडिंग है, जो सुप्रीम कोर्ट डिसीजन ले लेगा फिर उसको हाई कोर्ट एंड डिस्ट्रिक्ट कोर्ट दे कैन नॉट रिजेक्ट, ठीक है, उसको नहीं चैलेंज कर सकते सुप्रीम कोर्ट के डिसीजंस को, अंडरस्टूड। ओनली मीन्स बट सुप्रीम कोर्ट कैन चैलेंज द डिसीजंस ऑफ डिस्ट्रिक्ट कोर्ट एंड हाई कोर्ट, बात समझ में आई। तो सबसे सुप्रीम हमारे लिए क्या है, सुप्रीम कोर्ट, ठीक है। इट कैन टेक अप एनी डिस्प्यूट बिटवीन सिटीजन्स ऑफ द कंट्री, सुप्रीम कोर्ट के फंक्शंस, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट कैन टेक, ठीक है, डिसीजन बिटवीन सिटीजन्स ऑफ अ कंट्री, ठीक है। उस कंट्री में जितने भी सिटीजन्स हैं उनका जो भी डिस्प्यूट है, ठीक है, व्हाट एवर मैटर इज देयर, वेदर इट इज रिलेटेड टू प्रॉपर्टी, इट इज रिलेटेड टू कल्चर, इट इज रिलेटेड टू रिलीजियस मैटर, और इट इज रिलेटेड टू ऑक्यूपेशनल मैटर और बिजनेस मैटर, ठीक है। मीन्स सुप्रीम कोर्ट कैन डिसाइड द केस, ठीक है। सिटीजन्स के जितने भी केसेस हैं उनमें जो डिस्प्यूट होता है दैट इज डिसाइडेड बाय सुप्रीम कोर्ट, ठीक है। एंड इट कैन टेक्स डिसीजन बिटवीन सिटीजन्स एंड गवर्नमेंट, ठीक है, डिसीजन बिटवीन सिटीजन एंड गवर्नमेंट, ठीक है। सिटीजन एंड गवर्नमेंट में भी अगर कोई डिस्प्यूट है, ठीक है, दैट इज ऑल्सो डिसाइडेड बाय सुप्रीम कोर्ट। फॉर एग्जाम्पल कोई आदमी जो है क्या कहते हैं
वो ही वॉज डूइंग गवर्नमेंट जॉब, ठीक है, और उसको सस्पेंड करके डिटेन कर दिया, ठीक है, एंड फाइनली उसका पेंशन का मैटर आ गया, ठीक है, उसका पेंशन मतलब जो है विभाग वाले कह रहे हैं कि इसको पेंशन नहीं मिलेगी, और वो कह रहा है कि मैंने इतना टाइम तक नौकरी की है, मुझे पेंशन मिलना चाहिए। तब वो कहाँ जाएगा? सुप्रीम कोर्ट में, ठीक है। तो सुप्रीम कोर्ट जो है सिटीजन एंड गवर्नमेंट के बीच का जो डिस्प्यूट है उसको सॉल्व करेगा, ठीक है। तो इस तरीके से क्या होता है कि मतलब सुप्रीम कोर्ट इज ऑथराइज टू टेक डिसीजंस, ठीक है। फिर टू बिटवीन टू और मोर स्टेट गवर्नमेंट्स, ठीक है, इट टेक्स डिसीजन बिटवीन टू और मोर टू स्टेट्स, understand? Supreme Court can decide the matter between different states. For example, जैसे आपका भाखड़ा नांगल डैम, ठीक है, ये आपका पंजाब एंड हिमाचल प्रदेश के बॉर्डर पर बना हुआ है, ठीक है। तो दोनों का स्टेट्स में डिस्प्यूट हो सकता है कि ये डैम हमारा है, वो कहेगा ये डैम हमारा है, आधा उसमें है आधा उसमें है, ठीक है। वो कहेगा, पंजाब वाले कहेंगे अब इस डैम का वाटर हम जो है हिमाचल प्रदेश में नहीं जाने देंगे, हिमाचल प्रदेश वालों ने कहा हम उसको लेकर रहेंगे, ठीक है। तो ये डिस्प्यूट हुआ कि नहीं? तो ये मैटर कहाँ से डिसाइड होगा? सुप्रीम कोर्ट, ठीक है, सुप्रीम। इसी तरीके से आपका जो है साउथ इंडिया में भी वाटर डिस्प्यूट चलता है, ठीक है, पानी का बंटवारा, तमिलनाडु एंड आंध्र प्रदेश, ठीक है, वहाँ की गवर्नमेंट के साथ भी ये मैटर रहता है कि इतना क्यूबिक सेंटीमीटर वाटर आपको जो है एक दिन में छोड़ना पड़ेगा, ठीक है। ये कुछ ऑर्डर्स हुए थे, अंडरस्टैंड, तो उसको छोड़ना पड़ता उतना पानी, नहीं तो वहाँ इरिगेशन सिस्टम अफेक्टेड होगा, इजंट इट। तो ये सारी चीज़ें जो होती हैं हमारी कहाँ सॉल्व होती है? दैट इज इन सुप्रीम कोर्ट, ठीक है। और इसके साथ साथ सुप्रीम कोर्ट क्या लेता है? गवर्नमेंट्स एट द यूनियन एंड स्टेट लेवल, ठीक है, डिसीजन बिटवीन गवर्नमेंट of union, that is central government, union and state government, ठीक है, इनमें भी डिसाइड करता है ये। इट टेक्स डिसीजन बिटवीन गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट में अगर कोई डिस्प्यूट है, ठीक है, वो भी मैटर कहाँ जाएगा? सुप्रीम कोर्ट में जाएगा। आई बात समझ में? सो सुप्रीम कोर्ट प्लेज वेरी इंपॉर्टेंट रोल, ठीक है, फॉर इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन। अदरवाइज नहीं तो क्या होता? पीपल्स गवर्नमेंट बनती, सो द प्राइम मिनिस्टर हैज़ गॉट सुप्रीम पावर, ही कुड टेक बिग डिसीजन, है कि नहीं? वो कुछ भी कर सकता था, है कि नहीं? एक दिन तो पूरा यूपी को ही बेच देता, किसी को पता ही नहीं चलेगा, है कि नहीं? बाद में पता लगा यूपी वाले कहेंगे अरे हम तो पाकिस्तान में हैं, पाकिस्तान वालों ने खरीद लिया हम लोग को, मोदी ने बेच दिया, ठीक है। फिर ऐसे कहेंगे किसी भी स्टेट को, है कि नहीं, या किसी स्टेट को खरीद, किसी कंट्री का कोई एक स्टेट खरीद लेंगे, वहाँ अकबरपुर वालों को भेज देंगे, कहेंगे अपना ही पार्ट कंट्री है वहीं रहो जाके, ठीक, तो अपना घर बार छोड़ के वहाँ जाना पड़ेगा। तो ये चीज़ जो है, ये सब क्या होगा? ये सब डिसीजन कुछ भी ले सकते हैं क्योंकि गवर्नमेंट बन गई है कि नहीं? तो ये सारी चीज़ें ना हो, इसको कंट्रोल करने के लिए हमारे पास सुप्रीम कोर्ट जुडिशरी सिस्टम बना हुआ है, ठीक है। और ये इंडिपेंडेंट होना चाहिए। पता लगा कि सुप्रीम कोर्ट ने डिसीजन लिया और उसको कोई ट्रस्ट ही नहीं कर रहा है, तो वो डिसीजन खाली कहने के लिए हो जाएगा, है कि नहीं? क्योंकि वो क्या है? इंडिपेंडेंट नहीं है, राइट। सुप्रीम कोर्ट के डिसीजंस को मानना ही पड़ता है, ये कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है, अंडरस्टैंड, चाहे वो किसी भी पोस्ट पर क्यों ना हो, अंडरस्टूड। जब इलेक्शन स्टार्ट होता है तो हम लोग जो है क्या कहते हैं, उस समय तो कोई भी प्राइम मिनिस्टर, जो क्या कहते हैं, जो भी चीफ मिनिस्टर है, डीएम वगैरह है, वो तो चाहे किसी भी कैंडिडेट को जितवा सकते हैं, जिता सकते हैं ना, लेकिन क्या है, जुडिशरी वहाँ पे जो है स्टेप्स लेती है, ठीक है। और इलेक्शन कमीशन को एक इंडिपेंडेंट पावर दिया जाता है कि अब इलेक्शन कमीशन के ही इंस्ट्रक्शंस में सारे काम होंगे। अब प्राइम मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर, यूनियन मिनिस्टर का ऑर्डर नहीं चलेगा कहीं, सब चीज़ें सीज हो जाती हैं, ठीक है। यू हैव स्टडीड दिस थिंग अर्लियर। तो ऑल दीज थिंग्स
it happens, so it is the highest court of appeal in civil and criminal cases. तो सुप्रीम कोर्ट क्या है? हाईएस्ट कोर्ट ऑफ अपील, ठीक है, इट इज हाईएस्ट कोर्ट ऑफ अपील इन सिविल एंड क्रिमिनल केसेस, ठीक है, सिविल एंड क्रिमिनल केसेस, जो भी हमारे सिविल केसेस हैं, क्रिमिनल केसेस हैं, ये सबसे हाईएस्ट कोर्ट है जहाँ पे हम जाके अपील करते हैं। अंडरस्टूड? मतलब सुप्रीम कोर्ट से ऊपर फिर कोई चीज़ नहीं है, राइट। उसके बाद फिर सीधे क्या है, प्रेसिडेंट के पास डायरेक्ट मर्सी। मान लो किसी को सुप्रीम कोर्ट में फांसी की सज़ा हो गई, ठीक है, अब वो कहाँ जाएगा बेचारा? नाउ ही विल अपील टू द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया फॉर मर्सी, ठीक है, उसको दया याचिका के लिए। जैसे अभी एक बार 5-6 लोग हैंग किए गए थे ना बहुत सारे केसेस में, तो उनको मर्सी के लिए प्रेसिडेंट के पास हो गए, लेकिन प्रेसिडेंट ने मना कर दिया, ठीक है। वाई? बिकॉज ही कुड एक्ट ऑन द एडवाइस ऑफ प्राइम मिनिस्टर एंड कैबिनेट मिनिस्टर। भाई प्रेसिडेंट डिसीजन कब लेगा? जब हमारे प्राइम मिनिस्टर्स और कैबिनेट मिनिस्टर्स डिसाइड करेंगे कि हाँ इसको मर्सी करेंगे, ठीक है, इनको मर्सी मिलनी चाहिए, तब मिलेगी, नहीं तो नहीं। तो जब कैबिनेट उसके अगेंस्ट में है कि नहीं, तो देयर इज नो चांस, नहीं तो लास्ट ऑफर प्रेसिडेंट के पास होता है। अंडरस्टैंड? ऐसे बहुत सारे केसेस हुए हमारी कंट्री में, ठीक है। आप लोगों ने देखा होगा, यू हैव लिसन, दारा सिंह का नाम सुने? दारा सिंह, ही वॉज फिल्म एक्टर, ही वॉज रेसलर, है कि नहीं, एक बहुत बड़ा रेसलर था, और ब्राज़ील ओलंपिक में, ठीक है, तो उस समय उसने जो है 1960 में इंडिया के लिए गोल्ड मेडल मतलब जो है रेसलिंग में जीता था, ठीक है। तो वो उसको मर्सी मिला था, प्रेसिडेंट ने उसको मर्सी दी थी। क्यों? क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने उसको जो है क्या कहते हैं, लाइफ सेंटेंस दे दिया था, ठीक है, मतलब जो है उम्र कैद की सज़ा मिल गई थी, और बाद में लास्ट में फिर क्या हुआ, फिर दोबारा डिसीजन हुआ कि उसको फांसी दे दी जाए, राइट। लेकिन उसको मर्सी दी गई, क्यों? क्योंकि उसने मतलब ही वाज अ ग्रेट रेसलर, इंडिया में उस समय रेसलर नहीं मिल रहे थे ओलंपिक के लिए, और उसने प्रॉमिस किया कि जो है क्या कहते हैं, हम जो है रेसलिंग कर सकते हैं। तो उसने ऑफ़र रखा कि अगर प्रेसिडेंट मुझे मर्सी दे दे, अगर मैं रेसलिंग जीत गया तो मुझे प्रेसिडेंट को मर्सी देनी पड़ेगी, मुझे माफ़ करना पड़ेगा, इस शर्त पे मैं रेसलिंग कर सकता हूँ, ठीक। और उसने जो है जा करके ओलंपिक में उसने हरा दिया उसको, और वहाँ से गोल्ड मेडल जीत के लाया, तब उसको मर्सी मिल गई, जबकि उसने 5 मर्डर किए थे, ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ नेशनल प्राइड की बात आई ना, है कि नहीं। वो तो 5 कॉमन लोग जिनकी डेथ हुई वो यूजलेस थे, है कि नहीं, लेकिन ये तो हमारे लिए यूजफुल सिटीज़न हुआ, क्योंकि इसने नेशनल प्राइड ला के दिया हमें, है कि नहीं, तो उसको मर्सी मिली। तो ऐसे बहुत सारे केसेस हैं, ठीक है, दे आर गेटिंग मर्सी, अंडरस्टैंड। तो सुप्रीम कोर्ट के ऊपर फिर प्रेसिडेंट ही होता है जो मर्सी दे सकता है ऑन एडवाइस ऑफ कैबिनेट, ठीक है, अंडरस्टूड। सो इन दिस मैनर इंडिपेंडेंस ऑफ द जुडिशरी मीन्स दैट इट इज नॉट अंडर द कंट्रोल ऑफ द लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव। हमारी जुडिशरी इंडिपेंडेंट है, ठीक है, क्यों? बिकॉज इट इज नॉट अंडर कंट्रोल ऑफ आवर executive and legislature, ठीक है। So we can write one more line. Supreme Court is independent, ठीक है, as it is not under control of legislature and executive, ठीक है। एक पार्टिकुलर एग्जीक्यूटिव या एक पार्टिकुलर MP and MLA cannot change the decision or cannot take any action against a judge, understand?
whatever decision was made by this judge, they have to accept. ठीक है? Every type decision should be accepted by them if it is positive decision. ठीक है? हाँ, legislature can remove them. ठीक है? On behalf of क्या कहते हैं, फुल मेजॉरिटी. जब नो कॉन्फिडेंस बिल पास होगा लोकसभा, राज्यसभा एंड स्टेट असेंबली में, जैसे प्रेसिडेंट को चुना जाता है वैसे ही हटाया भी जाता है. जैसे प्रेसिडेंट को हटाया जाता है वैसे ही सुप्रीम कोर्ट के जज को भी हटाया जा सकता है. लेकिन उसके लिए कंडीशन क्या होती है? देयर शुड बी 2/3 मेजॉरिटी अगेंस्ट हिम. स्टेट जितने भी एमएलए हैं, सारे स्टेट के एमएलए, ठीक है, हमारे यहाँ 28 स्टेट्स हैं, सबके एमएलए, ठीक, प्लस लोकसभा एंड राज्यसभा, अगर उसके अगेंस्ट में वोटिंग करता है और 2/3 वोट्स उसके अगेंस्ट में आ जाते हैं, तब उस जज को हटना पड़ेगा. अंडरस्टैंड? तो एक लॉन्ग प्रोसेस होता है जज को हटाने के लिए. ठीक है? तो इसलिए जुडिशरी को काफ़ी पावरफुल माना जाता है. एक पार्टिकुलर प्राइम मिनिस्टर, एक पार्टिकुलर कैबिनेट मिनिस्टर जज को नहीं हटा सकता. ठीक है? और एक एग्जीक्यूटिव, चाहे वो डीएम है, चाहे आईएएस है, कुछ भी है, वो भी जज के एक्शंस को चैलेंज नहीं कर सकते. अंडरस्टैंड? उसके लिए क्या चाहिए? देयर शुड बी अ 2/3 मेजॉरिटी इन आवर कॉन्स्टिट्यूएंसीज डिसीजन. ठीक है? तो इन दिस मैनर वी कैन से दैट जजेस, they are independent and they are not answerable